Student, I am going to teach about the subject Money and Banking, class 12, chapter 1st and it part 4. We will study about the types of banks. There are following banks in our country: commercial bank, industrial bank, agriculture bank, foreign exchange bank, central bank, indigenous bank and regional rural bank. First of all, we will study about the Reserve Bank of India. It is a central bank of India, and as such, it performs all the function of central bank. It controls the credit and currency of the country. It has the sole right of note issue in the country, except 1 rupee note, which is issued by Government of India. All notes are issued by Reserve Bank of India. It means that note Reserve Bank of India have only right to issue the note in the country, and 1 rupee note are issued by Government of India, not by the Reserve Bank of India. 1 rupee note, and the main function of Reserve Bank of India to issue the paper money, that is the currency note, and to act as a banker of government. He worked Reserve Bank of India (RBI) worked as a banker of the government to control all the banks of the country, to give proper guidance, to act as a banker of bank. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक्ट कैसे करती है? एक्ट एज ए बैंकर ऑफ गवर्नमेंट का बैंकर बन के वो एक तरह से उस तरह से वर्क करती है. और फिर सेकेंड पॉइंट इज, ये जो कंट्रोल करती है सारे बैंकिंग सिस्टम को, सारे बैंक्स को, और ये फॉरेन एक्सचेंज को अरेंज करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को, एग्रीकल्चर फाइनेंस को, एंड कलेक्शन ऑफ पब्लिक स्टैटिस्टिक्स. we know I think we know the date of establishment of Reserve Bank of India. The date of establishment of Reserve Bank of India, 1st April 1935. It was nationalized 1st January 1949. The second point is a commercial bank. These banks which do ordinary banking business are called commercial bank. Commercial bank accept deposit, give loan and collect and pay check, work as the agent of the customer for the banking transaction. It means that कि कमर्शियल बैंक्स जो है, जहाँ एक एग्ज़ाम्पल कि जहाँ हम लोग पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं जिस बैंक में, वो बैंक आते हैं कमर्शियल बैंक में. अब डिफरेंस क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई में, कमर्शियल बैंक में, दोनों से भी वर्क करते हैं. बहुत डिफरेंस है. आरबीआई जो हमारे कंट्री का मनी को भी कंट्रोल करता है, और आरबीआई का मेन पर्पस क्या होता है? वो इंडियन पीपल्स के लिए, इंडियन पीपल्स के वेलफेयर के लिए वो काम करता है. और कमर्शियल बैंक्स जो है वो एज अ बिजनेस करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए. जब कमर्शियल बैंक हमको लोन देता है और या हम पैसा डिपॉजिट करते हैं कमर्शियल बैंक में, दोनों के इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है. और वो जो डिफरेंस होता है दोनों के इंटरेस्ट में, तो वो डिफरेंस वही जो है इसका प्रॉफिट होता है कमर्शियल बैंक का. कमर्शियल बैंक एक एजेंट की तरह वर्क करता है, जो कि हमको लोन, जो हम बहुत सारे ड्राफ्ट इशू करना, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करना, ट्रांसफ़र ऑफ मनी करना, तो ये all these functions are performed by the commercial banks, and through this bank earn profit. Bank charges some interest and commission. These interest and commission is the income of commercial bank. The third point is the industrial bank. While commercial banks can provide short-term loan only, industrial house need medium and long-term loan, which are provided by industrial bank. इंडस्ट्रियल बैंक नाम से ही हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए जो काम करती है.
कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म एंड मिडिल टर्म लोन देती है, मगर इंडस्ट्रियल बैंक जो है वो लोन हमारी कंपनीज़ को देती है। और कंपनी जब लोन लेती है तो वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट होता है, 50 करोड़ 60 करोड़। तो कंपनी जो है वो जब रिटर्न करती है पैसे तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाता है। तो इंडस्ट्रियल बैंक लॉन्ग टर्म अमाउंट देती है, लॉन्ग टर्म लोन देती है इसको, कंपनीज़ को। तो बहुत सारी बॉडीज़ हैं जो कि इंडस्ट्रियल बैंक के अंदर आती है, जो वर्क एज अ इंडस्ट्रियल बैंक। द नेम इज़ IDBI, IFC, ICC, ICICI Bank. This bank work as an industrial bank. The fourth point is a agricultural bank. This bank give loan to farmer for purchase of seed, agriculture tool and machinery. Generally charges concessional rate of interest. In India, two kinds of banks have been started to provide loan regarding the agriculture purpose. First is a cooperative bank, second is a land mortgage bank. This bank work as a agriculture bank. एग्रीकल्चर बैंक क्या करता है कि फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करता है जिससे कि वो सीड, टूल्स, इक्विपमेंट खरीदने और अपने जो नेसेसरी चीज़ है, ट्यूबवेल है, ट्रैक्टर है, प्लग्स है, उसको सारी चीज़ कर सके। और उस पर रेट जो होता है, इंटरेस्ट रेट बहुत ही कंसेशनल होता है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट होता है। दो तरह से बैंक हमारे उस कंट्री में वर्क करता है, एक कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा है लैंड मॉर्गेज बैंक। कोऑपरेटिव बैंक 3 लेवल पर वर्क करते हैं, विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल। ये भी सेम लोन प्रोवाइड करते हैं हमारे उसको, फार्मर्स को। सेकेंड इज अ लैंड मॉर्गेज बैंक, ये दे फाइनेंस एग्रीकल्चर, ये जो होते हैं एग्रीकल्चर को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। दिस बैंक गिव लोन ऑन द मॉर्गेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये एग्रीकल्चर लैंड पर लोन देते हैं ताकि वो अच्छे से अपने एग्रीकल्चर लैंड को डेवलप कर सके। द फिफ्थ इज अ फॉरेन एक्सचेंज बैंक। The main function of foreign exchange bank is to facilitate making payment in foreign currency by buying and selling foreign bills. One branch which is situated in one country purchases bill and make payment, and the branch situated in another country sell the bill and receive payment. अब फॉरेन एक्सचेंज बैंक क्या होता है? ये एक फ़ॉरेन करेंसी के ऊपर वर्क करता है। जो हमारी फ़ॉरेन करेंसी जैसे डॉलर है, यूरो है, रियाल है, तो ये सारे उस पर वर्क करते हैं। एक उसमें ब्रांच होगा जो हमारी कंट्री में होगा और दूसरा ब्रांच जो होगा वो दूसरे कंट्री में सिचुएटेड होगा। अब किसी ने फ़ॉरेन बिल एक्सचेंज इशू किया, पेमेंट लेना है, किसी को फ़ॉरेन बिल परचेज़ करना है, तो ये सारे वर्क जो है फॉरेन एक्सचेंज बैंक करती है। और सेकेंड रीज़न इज़ डैट हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज बैंक किस नाम से फेमस है? एक्सिम बैंक, EXIM। एक्सिम बैंक जो होते हैं वो एक्सिम बैंक नहीं, एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से रिलेटेड होते हैं। द 8th पॉइंट इज़ द इंडिजीनियस बैंकर्स। इंडिजीनियस बैंकर्स क्या होते हैं? In addition, commercial and cooperative bank, a lot of people are doing banking business in small town and village. Since time immemorial, moneylenders, Mahajan jewelers have been doing banking business in India. अब इंडिजीनियस बैंक क्या होते हैं? ये कुछ हमारे विलेज में या हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो बैंक की तरह वर्क करते हैं, जो लोगों को मनी लोन के उस पर देते हैं, लोगों को लोन देते हैं।
मगर जो वो होते कौन, मनी लेंडर्स हैं, महाजन हैं, ज्वेलर्स हैं, तो ये लोग मनी लेंड करते हैं टू द नीडी पर्सन्स को, और उस पर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, मगर ये पैसा डिपॉजिट नहीं करते जैसे कि डिपॉजिट हमारे बैंक, कमर्शियल बैंक्स करते हैं। The last point is the regional rural bank. Among the arrangements which are being made to provide facilitate for extension of agriculture and rural finance, the establishment of regional rural bank is the most important. अब रीजनल रूरल बैंक क्या है? रीजनल रूरल बैंक्स क्या, उनका वर्क क्या होता है? ये जो है, ये फार्मर्स को ये भी लोन प्रोवाइड करते हैं एंड विलेज पीपल्स को। पहले ये जो थे वो स्मॉल, इनका वर्क जो था वो लिमिटेड था। दे प्रोवाइड ओनली द स्मॉल फार्मर्स, लैंडलेस लेबरर एंड विलेज पीपल्स, बट nowadays they increase their activities and they work just like a commercial bank. They collect of check and bill, issue draft, and render various services to their customer, such as the insurance premium, and also provide the safe deposit lockers. तो ये पहले जो थे, इनका वर्क नीड ऑफ द सोसाइटी, इन्होंने अपने वर्क को इंक्रीज़ कर दिया। ये सिर्फ फार्मर्स को ही नहीं, बल्कि फार्मर्स ही को लोन ही नहीं, बल्कि बहुत सारे चेक फैसिलिटीज़ भी इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, ड्राफ्ट भी इशू किया, और बहुत सारे लॉकर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किया, इंश्योरेंस प्रीमियम भी का भी पेमेंट करने लगा ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। I hope all the point will be clear. If you have any doubt in any point, you can ask question. Thank you.